Hello students, as we were doing narration, so we have already completed the first type of narrations, that is assertive sentences के हमने direct से indirect form किए हैं. Now today let's see direct to indirect of exclamatory sentences. Exclamatory means जहां पर हम कोई भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है जहां पर, दिस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. इट मीन्स व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स लाइक जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो, सरप्राइज. सो दीज फीलिंग्स when expressed in a sentence, then that sentence is known as exclamatory sentence. Chaliye, let's see. Mohan said, "Alas, I have lost the match." Now, first of all, we have to remember the tricks as well. Rule number 1 says, if the reporting verb is in past, it means हमें जो tense है वो reporting speech का change करना है. And second rule says, आपको क्या याद रखना है, reporting verb, first person pronouns किसके according change होते हैं. Now let's see, देखिए यहाँ पर connective word हमारा कौन सा use होगा, connective word that. Assertive sentences, simple sentences में भी हमने क्या ऐड किया था, that. For example, he says that he is going to school. So exclamatory sentences में भी हम किसको ऐड करेंगे, that को. Now let's see the next one. Reporting verb किसमें change होंगे. In assertive sentences, reporting verb changes either into says, to, change हुआ था tell, tells, like that. Now अगर ये words हैं हुर्रे, बुर्रा, it means ये किसको express कर रहे हैं, joy को. Exclaimed with joy or happiness, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये चेंज हो जाएंगे, exclaimed with joy or happiness. Second one, alas, me, these words. All right, so यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, exclaimed with sorrow, because ये किसको express करते हैं, sorrow को. Now let's come to this sentence. Mohan said that अब और सेट का सेट नहीं रहेगा, बिकॉज ये क्या है यहाँ पर, alas. So what we have to see, we have to look for these words. Alas, Mohan exclaimed with sorrow that. First person changes according to the subject. Mohan, he. Has have किसमें change होता है, had में. That he had lost the match. Clear? Let's see the second one. Geeta said, "Hooray, we won the match." Hooray, we won the match. Geeta, now hooray. Geeta exclaimed with joy that. चलो इसको बाद में बताएंगे ये रूल्स. Geeta said, "Hooray, she won the match." Now she, first, third person pronoun never changes, तो क्या रहेगा, she won. One verb की कौन सी फॉर्म है, one verb की second form है. Second form changes into had plus V3, that she had won the match. Clear? So ये थे हमारे क्या, exclamatory sentences और उनके rules. Let's move to the next one. So guys, what is important in direct speech? In these speeches, what you have to remember, आपको ज्यादा फोकस रखना है रिपोर्टिंग वर्ब में, कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो रहे हैं, टेंस कहां पर चेंज हो रहा है, दैट्स इट. नेक्स्ट वन देखते हैं, imperative sentences. Imperative means the sentence in which there is an order, command, request, advice, suggestion. जहां पर order होता है, command, advice, suggestion, उन sentences को हम बोलते हैं imperative sentences. Now
इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा आपका ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड एक्सेट्रा, इन सब वर्ड्स में. ऑलराइट, ऑर्डर यू नो, जब किसी को ऑर्डर दिया जाता है रिक्वेस्ट प्लीज करना, कमांड किसको दी जाती है और एडवाइस किसको दी जाती है और सजेशन किसको दिया जाता है. देखो मिलिट्री फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, कैप्टन, सोल्जर्स, इन सबको हम कमांड देते हैं. सजेशन और एडवाइस में मैंने ऑलरेडी आपको मॉडल्स में बहुत ही डिटेल में क्लियर किया है. एडवाइस मींस जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता, एंड सजेशन मींस जनरली एक प्लेन सा इनफॉर्मल सा जब हम सजेस्ट किसी को कर देते हैं. ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन. नाउ कनेक्टिव वर्ड कौन से यूज होते हैं यहाँ पर? कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर हमारे यूज होंगे टू, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर इंपेरेटिव सेंटेंसेस दैट इज टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच नेवर चेंजेस. टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये आपने याद रखना है. बिकॉज इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज रिटन विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? तो ये आप क्या रखेंगे, बेशक रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच की टेंस हम चेंज नहीं करेंगे. लेट्स सी द फर्स्ट वन. द फादर सेड टू द सर्वेंट, ओपन द डोर. फादर ने सर्वेंट को क्या बोला कि डोर को ओपन करो, इट मीन्स उसको ऑर्डर दिया गया. द फादर ऑर्डर्ड द सर्वेंट. क्लियर? अब सेड टू को मैंने किसमें चेंज कर दिया? ऑर्डर्ड में. किसको देखते हुए? इस रिपोर्टिंग स्पीच के वे को देखते हुए कि ऑर्डर किया गया है, कमांड की गई है. नाउ इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम क्या ऐड करेंगे? टू. अब मैंने बोला जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच के वो चेंज नहीं होंगे, तो एज इट इज टू ओपन द डोर. चलिए लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स. My father said to me, study hard. Now tell me, is it order or advice or suggestion? ये advice है कि suggestion है? मेरे फादर मुझे बोलते हैं कि तुम मेहनत करो, तो ये क्या है? ये एडवाइस है, बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमें इसका लॉस होगा. माई फादर एडवाइज्ड मी टू स्टडी हार्ड. नो चेंज. सेड टू किसमें चेंज हो गया? एडवाइस. इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके हमने क्या ऐड किया? टू. माई मदर सेड टू मी, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब प्लीज है तो इट मीन्स क्या है यहां पर? रिक्वेस्ट. माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू, नाउ डोंट राइट डाउन दिस वर्ड, टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. बिकॉज प्लीज को ऑलरेडी किस वर्ड ने बता दिया? रिक्वेस्टेड मी. तो इसको रिपीट नहीं करना. माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. सो नो चेंज. मैंने किसी भी स्पीच में चेंज नहीं किया, एज इट इज. ऑलराइट, नाउ सी द लास्ट वन. I said to him, let me do it. So in this sentence, student get confused कि मैम यहाँ पर क्या लिखें, because let है. So let किसको डिनोट करता है? ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, कमांड को, एडवाइस को, सजेशन को. So let होगा, हम क्या लिखेंगे? I requested him. All right, let को हम किस में चेंज करेंगे? I requested him to let me do it as it is. तो rest आपका जो रहेगा वो सेम रहेगा. I requested him to let me do it. Clear? Now this one is important. Teacher said to students,
do not go out. Teacher said to students, don't go out. It means, देखिए, रिपोर्टेड स्पीच जितनी भी अभी तक आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखी है, वो रिपोर्टेड स्पीच हमारी पॉजिटिव रही है. बट ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच हमारी किसमें है, नेगेटिव. सो व्हेन एवर इन इंपेरेटिव सेंटेंस आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसमें होगी, नेगेटिव में, तो आप कौन सा वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे, फॉरबिड. फॉरबिड मीन्स मना करना, नेगेटिव वर्ड. तो क्या होगा, टीचर सेड टू किसमें चेंज हुआ, forbade students. Now टीचर forbade students. टीचर ने forbade कर दिया मीन्स टीचर ने मना कर दिया स्टूडेंट्स को. इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे टू आएगा. टीचर forbade स्टूडेंट्स टू, डू भी नहीं लिखते, एज वेल एज नॉट भी नहीं लिखते, टू गो आउट, बिकॉज forbade itself is a negative word. तो ये नॉट के साथ एग्री तो नहीं करेगा, तो डू को भी हम नहीं लिखेंगे. टीचर forbade स्टूडेंट्स टू गो आउट. चलिए, डू दिस वन. मदर सेड टू चिल्ड्रन, डू नॉट प्ले आउटसाइड. कीजिए इसको. मदर सेड टू चिल्ड्रन, डू नॉट प्ले आउटसाइड. डोंट प्ले आउटसाइड. डू नॉट से आइडिया हो गया, नेगेटिव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगा, मदर forbade चिल्ड्रन. मदर ने बच्चों को मना किया. अब इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे टू, ये तो यूज नहीं होगा. मदर forbade चिल्ड्रन टू प्ले आउट साइड. क्लियर. तो ये आपके कौन से सेंटेंसेस थे, इंपेरेटिव. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव, इंपॉर्टेंट वन. For interrogative we have 3 to 4 rules. देखिए, first one, interrogative means question. All right. अगर इन रिपोर्टेड स्पीच आपकी इन क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है, कौन कौन से, हेल्पिंग वर्ब, is, am, are, was, were, has, have, will, shall, इनसे, तो इनका रूल हमारा क्या है, डिफरेंट. सेकंड, अगर क्वेश्चन आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, डू, डज, डिड से, देन अगेन हमारे रूल क्या है, डिफरेंट. एंड थर्ड, अगर इंटेरोगेटिव हमारा स्टार्ट हुआ किससे, WH वर्ड से, लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई प्लस हाउ से, देन अगेन आवर रूल्स आर डिफरेंट. सो वी हैव टू लुक कि हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो किससे स्टार्ट हो रही है, देन हम इसको अप्लाई करते हैं. चलिए, लेट्स सी द फर्स्ट वन. अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें जो डायरेक्ट स्पीच है वो इन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई, फर्स्ट रूल, हम कनेक्टिव वर्ड कौन सा यूज करेंगे, इफ और वेदर. रूल नंबर 1 क्या कहता है, हम कौन सा कनेक्टिव वर्ड यूज करेंगे, इफ और वेदर. नाउ रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होंगे, आस्क्ड, क्वेश्चन्ड, interrogated, like these. Clear? Rule number 1 clear. Rule number 2, अगर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ डू, डज, डिड से, डू और डज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ऑलरेडी डिस्कस किया. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है सेकेंड फॉर्म में. डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म. तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, डिड चेंज होता है हैड प्लस V3 में, प्लस कनेक्टिव वर्ड यहां पर भी कौन सा यूज होगा, इफ और वेदर. क्लियर. नाउ रूल नंबर 3, अगर हमारा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ, WH वर्ड से, वेयर, व्हेन, व्हाई, इफ और वेदर इज नॉट यूज्ड, यहां पर कोई भी कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं होगा. क्लियर. चलिए, 1 by 1 लेट्स सी थ्रू एग्जांपल्स.
He said to me, are you studying? ये रूल नंबर 1 देखते हैं. सेकेंड सेंटेंस, Mohan said to me, have you done your work? चलिए, he said to me, are you studying now? He said to, मैंने आपको बोला रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होगा, आस्क्ड और क्वेश्चन पूछा, तो he asked me. नाउ रिपोर्टिंग वर्ब कौन से यूज होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा इफ और वेदर. देखिए वेदर कब यूज होता है? जब हमारे पास चॉइस गिवन होती है. When we'll be provided with the things, two things, and we have to choose one out of the two. कि आपको टी अच्छी लगती है कि कॉफी, इट मीन्स मेरे पास चॉइस है, तब मैं वेदर लिखूंगी. अगर प्लेन सिंपल क्वेश्चन है तब हम क्या यूज करेंगे? इफ. तो ये आर यू स्टडिंग पूछ ही रहा है. ही आस्क्ड मी इफ. क्लियर? नाउ देखिए रूल क्या कहते हैं, हमने पहले किसको चेंज करना है? प्रोनाउन को, देन ही हम इन पे हेल्पिंग वर्ब्स पे जाते हैं. तो यू सेकंड पर्सन है, मैंने बताया. मी होगा तो क्या आएगा? आई. नाउ इज आर मार किसमें चेंज होते हैं? इज आर मार चेंजेस इनटू वॉज वर. आई है सिंगुलर है. इफ आई वॉज रेस्ट आपका सेम. नाउ क्वेश्चन मार्क नहीं डालना, फुल स्टॉप डालना है. ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज स्टडिंग. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन. मोहन said to again changes into asked. Mohan asked me if, inverted commas remove किया. You है second person, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? me. If I, has have किसमें चेंज होता है? had में. If I had done, अब देखिए आगे क्या है? your. You have to change this pronoun also. You change होता है, you change होता है I में, योर चेंज होता है माई में. इफ आई हैड डन माई वर्क. क्लियर? नेक्स्ट वन. राधा आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव किया. इफ यू फिट सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग. इफ आई हैड, अच्छा अब हैड देखिए, हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड सेकेंड. हैड कौन सा है? पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट हमने रूल में देखा था, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता. इफ आई हैड प्लेड क्रिकेट. क्लियर है? सो ये कौन सा रूल है? फर्स्ट वन. इफ योर क्वेश्चन स्टार्ट्स विद एनी ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स, देन रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू इफ और वेदर. सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू आस्क्ड और क्वेश्चन प्लस कनेक्टिव वर्ड कौन से यूज होंगे? इफ या वेदर. चलिए लेट्स सी द सेकेंड कैटेगरी. नाउ नेक्स्ट वन. डू, डज, डिड. सो ये क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहे हैं? डू और डिड से. ही सेड टू मी, डू यू टेक टी. अब क्या बोले?
डू और डस किस में चेंज होंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म में. डिड चेंज होगा हैड प्लस V3 में, और रिपोर्ट कनेक्टिव वर्ड इफ और वेदर यूज होंगे. ही आस्क्ड मी सेम. इफ इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव किया इफ. अब सेम यहां पर आइए, यू सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी. इफ आई. नाउ हाउ यू हैव टू चेंज दिस पार्ट, डू और टेक. So students, what you have to remember, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू, डज और डिड, इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते हैं. ये सिर्फ आपको आइडिया दे रहे होते हैं कि प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट. डू डिनोट्स प्रेजेंट, दैट्स वाई वर्ब फर्स्ट फॉर्म. और डिड भी पास्ट है लेकिन ये एग्री करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. तो डिड ने आइडिया दे दिया पास्ट की बात हो रही है, सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है, एंड डू ने आइडिया दिया फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे? सेकेंड फॉर्म में. टेक का क्या हो जाएगा? टुक. ही आस्क्ड मी इफ आई टुक टी. इट मीन्स, सो व्हाट वी कैन से, डू को हम इसमें नहीं लिखते और जो वर्ब गिवन है जस्ट उसको कौन सी फॉर्म में चेंज कर देते हैं? सेकेंड फॉर्म में. सेम यहां पर आइए, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे इफ. यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? सेकेंड पर्सन, अगेन आई. नाउ डिड है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो आप टेक को किस में चेंज करेंगे? हैड प्लस V3 में. इफ आई हैड, थर्ड फॉर्म क्या होगी? इफ आई हैड टेकन लंच. क्लियर? चलिए डू दिस वन. ही सेड टू मी, he said to me, do you play cricket? He said to किस में चेंज करेंगे? asked me, inverted commas रिमूव करेंगे if. you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकेंड पर्सन, I. तो do ने बता दिया प्रेजेंट है. V1 किस में चेंज हो जाएगा? V2 में. if I played cricket. क्लियर? चलिए लेट्स सी द थर्ड टाइप. He said to me, what are you doing? He asked me. Now कनेक्टिव वर्ड्स इफ और वेदर यूज नहीं होंगे यहाँ पर. इफ और वेदर को हम यूज नहीं करेंगे. WH वर्ड्स एज इट इज रहते हैं. He asked me what. Now again to pronounce I is a mark इसमें चेंज होता है was वर्ड में. What I was doing. Clear? चलिए let's see the next one. He said to me, why do you play cricket? He asked me. अब no connective word, why remains as it is. Why? अब देखिए ये सेम रूल. Do you play cricket? You किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? Me. Why I do है तो इसको किसमें चेंज कर देंगे? सेकेंड फॉर्म में. Why I played cricket. क्लियर? चलिए लेट्स सी देन वन मोर. He said to me, how old are you? अब वी हैव रिटन वन मोर वर्ड्स की WH वर्ड्स के साथ साथ अगर किस और वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो, हाउ से. He asked me, how old. अब देखो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी. आई इज अ मार्क इसमें चेंज हो जाता है वॉज में. हाउ ओल्ड आई वॉज. क्लियर? सो ये हमारे कौन से टाइप थी? ये हमारी थी थर्ड टाइप. फोर्थ टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. चलिए जिसके 3 टाइप्स के रूल मैंने आपको क्लियर किए. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टाइप, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस.
चलो, सो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मीन्स जहां पर कोई विश की जा रही होती है, प्रेयर हो रही होती है, किसी को अपलॉड किया जा रहा होता है, प्रेज किया जा रहा होता है. ऑलराइट, सो कौन से वर्ड्स हैं जिनको आपने चेंज करना है? फर्स्ट देखिए, ब्रेवो, मे यू लिव लॉन्ग. ऑलराइट, good afternoon, may long life, these words. Now bravo को आप चेंज करेंगे applauded him saying, applauded him saying. prayed क्योंकि प्रेयर किया जा रहा है, और गुड आफ्टरनून या इवनिंग या मॉर्निंग होगी तो हम क्या लिखेंगे? wished. और चलिए लेट्स सी द सेंटेंसेस. He said, bravo, bravo, you have done well. तो क्या होगा? He applauded, bravo किसमें चेंज हुआ? He applauded him saying, कनेक्टिव वर्ड्स क्या यूज होंगे यहां पर? that. Alright, now अब यू है, आप यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ही, सेकेंड पर्सन तो आगे गिवन नहीं है, तो इसमें जनरली क्या रहेगा? ही. हैज हैव किसमें चेंज होगा? हैड में. ही हैड डन वेल. क्लियर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन. जस्ट अ सेकेंड. He said good morning, boys. Clear? Let's see one more. They said, long live the king. Now, he said good morning, boys. अब good morning, good afternoon को हम किस में चेंज करते हैं? wished. He wished good morning. So whenever this one we have to use this connective word. क्या है? to. Because connective word यहाँ पर क्या होगा? to. wish किसी ना किसी को की जाएगी. They prayed that, because may है ना, long live, that the king might, may है तो may किस में चेंज हो जाएगा? might में. king might live long. क्लियर? सो ये थे स्टूडेंट्स आपके कुछ सेंटेंसेस लाइक ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव. सो व्हाट इज द बेसिक थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, पहले भी. अगर एग्जाम में आपको ये सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं तो आप फोकस रखिए रिपोर्टिंग वर्ब में कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो रहा है. प्लस आप आगे ये देखिएगा कि इनके साथ क्या वर्ड्स हैं, बिकॉज ऑप्शंस आपको गिवन है एग्जाम में. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. सो पहले इनकरेक्ट कर लीजिए, कौन से 3 ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, देन गो फॉर द करेक्ट वन. क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन.